Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हम हर एक का स्वागत करते And a हैं warm welcome from the Heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया से हम हर एक का स्वागत करते हैं We thank you for joining us live. और धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप आज इस लाइव स्ट्रीम में हमारे संग मौजूद हैं And we thank each and everyone who is present over here. और यहाँ जो कोई भी आज है उनके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Can you please turn to your Bibles from 1 Peter chapter 1 verse 9. और आज हम अपने वचन में देखेंगे पहला पत्रस की किताब पहला अध्याय 9 वचन। So it's 1 Peter chapter 1 verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. आमेन। So as the word says that we are the chosen generation और जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें हमारी पीढ़ी को चुना है and a royal priesthood. और हम परमेश्वर के पवित्र जन हैं And God considers us as a special people और परमेश्वर ने हमें खास जन करके चुना है so that we may proclaim and praise him ताकि हम परमेश्वर के नाम को उठाएं उनकी महिमा करें because he is the only Lord Almighty God. क्योंकि वही है एक परमेश्वर। How wonderful our God is. हमारा परमेश्वर महान है। When he has kept us as a special people, जब परमेश्वर ने हमें खास जन बना के खड़ा किया how much privilege we should be to him. और इसलिए हमें बहुत ही सौभाग्य महसूस करना चाहिए। Come on church, rise up and let us look up to the Lord in prayer. आइए हम सब खड़े हो जाएं, परमेश्वर की ओर देखें और प्रार्थना करेंगे हम। Let us fervently pray to the Lord and let us, whatever we have, the deep desires, so that the Lord will answer our prayers. और आए हम हृदय की गहराइयों से परमेश्वर की ओर देखें और प्रार्थना करें। And let us pray for the service as well. और पूरी सभा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। And let us pray for the word and the worship. और हम आज की जो सभा है वचन के लिए आराधना के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you for this time you have given us. परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं सुंदर समय जो आपने दिया। Lord, we thank you for the word which you have chosen so that we may look up to you, Lord. और परमेश्वर वचन के लिए धन्यवाद, आपके वचन के लिए धन्यवाद। इसकी वजह से ही हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। Lord, we pray that, Lord Almighty God, let us worship you in truth and in spirit. परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए हमें मदद कीजिए। And we pray for all those who are joining us live right now, Father. और आज जो कोई हमारे संग लाइव स्ट्रीम में मौजूद है हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। We pray for the church service from the beginning and the end. Lord Almighty God, you take total और control. पहले शुरुआत से लेकर अंत तक आज की सभा को भी आप चलाइए प्रभु। And we pray for all the deep desires which we have within so that you may fulfill it in the name of और our जो Lord and कुछ भी Savior हृदय Jesus की Christ. गहराइयों में हमारी इच्छाएं हैं उसको पूरा कीजिए यीशु के नाम से। We thank you for this time you have given us. We thank you for assembling us together so that we could worship you in truth and in spirit. धन्यवाद प्रभु सुंदर समय जो आपने दिया, इस मौका आपने दिया हम सब इकट्ठे होके हम आपकी आराधना करने के लिए। Lord, bless each and everyone over here. हर एक को आशीष कीजिए And let your name be glorified in and through our works. और हमारे कार्यों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। We keep each and everyone into your precious hands. We keep the service into your precious hands. ये पूरी सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते And हैं। you take total control. आप चलाइए। In the name of Jesus we humbly pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. 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 How great our God is. हमारा परमेश्वर महान है Because he has kept us as his chosen people. क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और उनके लोग बनाया है And he has called us that we should rise up above nations. और परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमें उठना है दूसरों के सामने। Hallelujah. हालेलुया। Are you all blessed to listen to the word and worship? क्या आप आशीषित हैं आज की जो आराधना और वचन में प्रवेश करने? Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। Amen. हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। आमेन। क्या विश्वास करते हैं उनके समान कोई नहीं है। Our God is good. नेक है हमारा परमेश्वर। और आज भी जैसे हम परमेश्वर की धन्यवाद करते हैं हम कहेंगे प्रभु पूरे हफ्ते आपने मुझे चलाया है, आप हमारे संग रहे हैं। जब हमने प्रार्थना नहीं किया तो भी जो प्रार्थनाएं आज तक हमने किया है उसने हमें संभाला है। उतना विश्वास योग्य परमेश्वर आप हैं। हालेलुया। Our God is good
Is He good today or always? He's all the time good. Amen. Let's sing along together. We all know this song. Join along. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, the light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. Put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. In the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. So clap your hands and say, Lord, you are good. Your love endures forever, Lord. We are sinners and so unworthy.
हालेलुया। Are you excited today? आई जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हमारा परमेश्वर जो है वो भला है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम उन्हें भूल जाते हैं, बहुत बार हम पीछे मुड़ के चले जाते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि वापस हमें परमेश्वर की आत्मा याद दिलाता है कि हम कौन है और किसने हमें बुलाया है। हालेलुया। It's not because of us, it's not because of our works, हमारे कार्यों की वजह से नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रभु आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। You are a gracious God. Why? Because it's not by our work. आप क्यों अनुग्रहकारी हैं? क्योंकि ये कार्य जो है वो मेरे वजह से नहीं, लेकिन आपके अनुग्रह की वजह से आपने मुझे चुना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई आपके जन्मदिन में आपको एक गिफ्ट देते हैं, अगर एक वॉच, एक घड़ी आपको तोहफा दिया है, तो उसके बाद अगर कोई और वो घड़ी को देखकर पूछता है कि ये क्या है, तो आप ये किसका है पूछते हैं, तो वो आप क्या कहेंगे? क्या आप वो इंसान के नाम को लेंगे जिसने आपको दिया है, कि आप कहेंगे कि ये घड़ी मेरा है? परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। The Lord has given us salvation. परमेश्वर ने अपने पुत्र हमें दिया है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? वो मेरे परमेश्वर है। उन्होंने अनुग्रह दिया, तो हम क्या कहेंगे? वो अनुग्रहकारी परमेश्वर मेरे हैं। It is yours. वो गिफ्ट आपके लिए है, वो तोहफा आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान के ऊपर इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दिया, हमारे लिए दिया। तो हमारा परमेश्वर किसके हैं? आप अपने मुंह खोल के करेंगे, हमारे हैं, मेरे परमेश्वर है। Why? Because he is a gift to me. Hallelujah. इतने भले परमेश्वर है। 14 ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करेंगे। We thank you Jesus. आया आंखें बंद करके परमेश्वर की ओर देखेंगे। Lord, we want to thank you, Lord. You are a worthy God. आपके सम्मान कोई नहीं है यीशु। आपके सम्मान कोई नहीं है यीशु। धन्यवाद कहते हैं क्योंकि आप एक भले परमेश्वर हैं। We worship you, Lord. We thank you, Jesus. We worship you, Lord. कहती है दिल
जो कुछ भी कार्य आपने किया है उसके लिए आपके नाम की महिमा हो। विश्वास योग्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, अपने मुख खोल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Let's all open our mouths and say, Lord, be glorified in my life, Lord. मेरे जीवन द्वारा आपके नाम की महिमा हो यीशु। आइए सब साथ मिलके परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। अपने मुंह खोल के we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Do something new in our life even today, Lord. आज भी मेरे जीवन द्वारा एक नया कार्य कीजिए, एक नया कार्य कीजिए प्रभु, एक नया कार्य कीजिए यीशु। आप योग्य हैं, हर स्तुति के योग्य है। Do something new, Lord. We worship you, Lord Jesus. Praise you, Lord. You are my God. Thank you, God, for giving your only Son just for me. हमारे लिए अपने इकलौता पुत्र अपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। कहते हैं मेरे परमेश्वर है, मेरी खुदा है। अभी ये तोहफा मेरा है, मेरे नाम पे ये दिया है, और इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूँ। तेरी पावन दया
Let's all sing along together. अपनी आवाज उठाए साथ मिलके. वो मेरे यीशु है, वो आपकी यीशु है. मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशु. You are our Father, you are our friend, you are our God. There is no one else like you, Lord. We thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, इस सुंदर समय जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद. हर स्तुति महिमा आपको देते हैं प्रभु. आप विश्वास योग्य है. आज के दिन में भी हमारे जीवन एक अद्भुत कार्य करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद. आने वाले दिनों में एक महान कार्य हमारे जीवन में होने वाला है, उसके लिए धन्यवाद. धन्यवाद यीशु, इस पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद. सब शैतान के बंधन को, योजनाओं को हम यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं. We give you all the glory, honor and praise. Take total control. आपकी सेवक को ढक के आप उनके द्वार से बात कीजिए. आपके नाम की महिमा हो. Let your name be glorified. यीशु मसीह के पवित्र, अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया, हालेलुया. आई जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे. हमारा परमेश्वर महान है. आमेन. जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं. गॉड ब्लेस यू. Hallelujah. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका वापस फिर से स्वागत करते हैं. हालेलुया. जैसे आपने इतना अच्छा एक आराधना में जुड़े हुए हैं, as you have joined along with us in worship, we believe that you have been blessed. मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जैसे आराधना कर रहे थे, आप लोग सब आशीषित लोग हैं. And as you are watching this, don't forget to share with your family and friends so that they'll also be blessed. और जैसे आप ये देख रहे हैं, कृपया अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ ये शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे देखकर आशीषित हो जाए. Hallelujah. Hallelujah. Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? I thank the pastor for giving me the opportunity to share the word today. आज पासवान का धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने एक मौका दिया है आज भी आपसे संदेश बांटने के लिए. Hallelujah. 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 So, we all come here in the presence of God because we know that God loves us. हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं. And because God has called us, we all are here. और क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम सब यहाँ हैं. When somebody asks you, do you want to be called or do you want to be chosen? अगर कोई आपसे पूछते हैं कि आपको बुलाया जाना है कि चुने हुए में रहना है, we all say we want to be chosen. हम सब बोलते हैं कि हमें उन चुने हुए लोगों के बीच रहना है. But how far do we realize what is the importance of being called? और लेकिन हम कब जानेंगे कि बुलाए जाना का महत्व क्या है? Many of us keep struggling, asking, I don't know what is my calling. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा बुलावट क्या है. I don't know what God has called me to do. मुझे पता नहीं कि परमेश्वर मुझे
क्यों बुलाया है, क्या करने के लिए बुलाया I है, don't know why I'm in this world. क्यों मैं इस दुनिया में हूँ। So today the Lord is going to teach us about God's calling. और आज परमेश्वर हमसे बात करने वाले हैं उनकी बुलावट के बारे में। So we need to turn the word. Let us open our Bibles to 2 Peter. हम दूसरे पत्रस की किताब खोलेंगे। 2 Peter chapter 1, पहला अध्याय verse 10 to 11. 10 और 11। Yeah. Of this salvation, the prophets have inquired. Can you start? इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। Let's take 2 Peter हम दूसरे पत्रस खोलेंगे। chapter 1, पहला अध्याय verse 10 10वां वचन and 11. और 11 भी पढ़ेंगे। Yeah. You can read in Hindi. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। These particular verses are telling us the importance of being called and elected. और ये वचन जो कहता है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से कहता है कि हमारे बुलाए जाने के बारे में। So when you बुलाए जाने read से verse 10, और जब हम 10वां वचन पढ़ते हैं, it says, "Be more diligent to know your call and your election sure." और यहाँ लिखा है कि बुलाए जाने का और चुने लिए जाने का सिद्ध करने की भली भांति यत्न हमें करते रहना चाहिए। We always despise or take it very lightly about the calling of God. हम परमेश्वर की बुलावट को ऐसे ही बहुत ही व्यर्थ रूप से ले लेते हैं। And here the Bible says that when you are sure of it, और वचन यहाँ कहता है कि जब तुम ये जानते हो, you will never stumble. और यदि तुम ऐसे करोगे तो तुम कभी ठोकर न खाओगे। You will never slip away. तुम कभी ठोकर न खाओगे। As the pastor has been teaching us all the past Sundays, और इतने हफ्ते पासवान ने हमसे बहुत कुछ बांटा है संदेश को। how important it is to know the word of God. कितना महत्व है परमेश्वर के वचन को जानना। We have been learning and we've been equipping ourselves. और हम बहुत ही अगले हफ्ते बहुत ही हम पढ़ रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं परमेश्वर के वचन को। When you know the call of God, you will never stumble. जब आप परमेश्वर की बुलावट को जानोगे, आप कभी ठोकर न खाओगे। Verse 11 says that you will be, you will be welcomed into an everlasting kingdom of और God. 11वां वचन कहता है कि यीशु मसीह के अनंत राज्य के बड़े आदर के साथ तुम प्रवेश करोगे। So this is when you know your call. ये तब होगा जब आप अपने बुलावट को जानेंगे। And we need to know who is the one who calls you. और हमें जानना बहुत ही जरूरी है कि किसने हमें बुलाया है। Many times if somebody invites you for a party or some celebration, और बहुत बार जब कोई आपको एक पार्टी के लिए नहीं तो सेलिब्रेशन के लिए बुलाते हैं, मनाने के लिए, so they call you with different expectations. और अलग एक्सपेक्टेशन के साथ वो आपको बुलाते हैं, दूसरे एक सोच के साथ आपको बुलाते हैं। When somebody calls you, you might be their family. एक उम्मीद के साथ आपको बुलाते हैं। अगर कोई आपको बुलाता है तो आप परिवार होके बुलाएंगे, You might be their friend. आप उनके दोस्त होंगे, You might be somebody to help around. आप उनको मदद करने के लिए कोई रहेंगे, You might be somebody who's cooking the meal. नहीं तो आप खाना पकाने वाले रहेंगे, You might be decorators. नहीं तो आप सजाने वाले So रहेंगे। the word calling is called for all. लेकिन ये बुलावट शब्द है, ये सबके लिए है। But who is called for what makes a difference. लेकिन किसको किसके लिए बुलाया गया है वो उनको अलग करता है। Who is the one calling you is also different for you. और जिसने आपको बुलाया है वो भी अलग है। If somebody is a friend for you, family for you, it makes a difference. और अगर कोई तुम्हारा परिवार है, दोस्त है, वो अलग करता है। So now we need to know who is the one who calls you. इसलिए अभी जानना बहुत ही जरूरी है कि किसने आपको बुलाया। Let's turn to 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीन की किताब
1 Thessalonians chapter 5, 5वां अध्याय verse 24. He who calls 24 you वचन। is faithful, who also will do it. तुम्हारे बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। He is faithful. वो विश्वास योग्य है। The one who calls you is faithful. वो विश्वास योग्य है, सच्चा है। The Lord who calls you and me is faithful. जिसने आपको और मुझे बुलाया वो सच्चा है। How many times has God called his people? कितनी बार परमेश्वर ने अपने लोगों को बुलाया। If you read Genesis chapter 22 verse 11, और उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और 11वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, God calls Abraham. परमेश्वर इब्राहिम को बुलाता He है। says, Abraham, Abraham. वो कहते हैं इब्राहिम, इब्राहिम। And this is the time when Abraham was going to kill his son. और ये वो समय है जब इब्राहिम अपने बेटे को मारने वाला था। And God called him and stopped it so that to tell Abraham that he cleared the test. और परमेश्वर ने उनको बुलाया और इसीलिए रुकाया क्योंकि ये कहना था परमेश्वर को कि उन्होंने परीक्षा में पास किया। 1 Samuel chapter 3 verse 4. पहला शमूएल की किताब 3 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे। It says that God called Samuel, Samuel. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल को बुलाया 2 बार। So here you see in these verses, in this particular verse, God calls Samuel because he's telling him what is going to happen and he ordains him as a prophet. और क्योंकि परमेश्वर उनसे कहना चाहते हैं और उन्हें भविष्यद्वक्ता बनाने वाले थे, नियुक्त करने वाले थे। So God keeps calling for different purposes. और परमेश्वर अलग योजनाओं के लिए लोगों को बुलाते हैं। He keeps calling his children. वो बुलाते रहते हैं अपने लोगों को। Now when was the first time God called somebody? पहली बार कब था कि परमेश्वर ने किसी इंसान को बुलाया? It was in Genesis chapter 3 verse 8 और उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 8वां वचन में वो लिखा है that God, for the very first time, he calls someone. पहली बार परमेश्वर किसी इंसान को बुलाते हैं। That is the verse that is written that God called Adam. और वो वहाँ लिखा है स्पष्ट रीति से कि परमेश्वर ने आदम को बुलाया। In this particular chapter, Genesis 3:8, और उत्पत्ति की किताब 3:8 में हम देखते हैं this is a time when Adam and Eve had committed sin and they went hiding away from God. ये वो समय है जब आदम और हवा ने पाप किया और वो छिपने लगे परमेश्वर से। They were afraid of God and they hid from God. वो डरने लगे और छिपने लगे परमेश्वर से। And this is the time God, who used to spend all his time with these two people that he created, और ये वो समय है जब परमेश्वर अपने समय जो है आदम और हवा के साथ बिताते थे। but he comes here and he finds that Adam and Eve are hiding. और अभी आकर देखते हैं कि दोनों उनसे छिप रहे हैं। It's not like God did not know. ये वो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं जानते थे कि आदम और हवा किधर है। It is not like he's not aware of whatever happened. ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर बिल्कुल नहीं जानते थे कि क्या हुआ था उस बाग में। When Adam and Eve had sinned, they feared and they were embarrassed to face God and they went hiding. जब आदम और हवा ने पाप किया, उनको शर्म आई थी और इसलिए वो छिपने लगे परमेश्वर से। Many times when we do something against God, we go away from Him. We keep ourselves away and hide ourselves away from Him. जब हम कोई पाप करते हैं, कुछ गलत करते हैं, हम भी परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, छिप जाते हैं, परमेश्वर के करीब नहीं जाते। If something wrong, if somebody commits something wrong in their lives, the first thing they do is they stop praying. अगर कोई गलत करता है अपने जीवन में, पहली चीज वो क्या करते हैं कि प्रार्थना रोक देते हैं। If they feel something is wrong, the first thing is they show their anger towards God. और अगर कुछ गलत होता है, पहली चीज वो गुस्सा परमेश्वर की ओर दिखाते हैं। They keep themselves away from anything that is related to God. और परमेश्वर की चीजों से अलग कर देते हैं खुद को। This very same situation when Adam was just in hiding. ये ऐसे ही हुआ जब आदम जो है वो छिप रहा था, But God, knowing everything, परमेश्वर सब जानते हुए भी, God knowing that this is the same Adam who sinned against me, who did not obey me, ये वही आदम है जिसने पाप किया मेरे विरुद्ध, जिसने मेरी जो आज्ञा को पालन नहीं किया, ये वही आदम है बोले। in spite of that, ये God जानते comes हुए out. भी परमेश्वर बुलाते हैं, God comes out and calls him. बुलाते हैं, बाहर आते हैं और बुलाते हैं। Even today, wherever you are, whatever situation you are
God is here readily waiting and calling you. आप भी आज जो कुछ भी परिस्थिति में रहेंगे तो भी परमेश्वर बाहर आते हैं और आपको आज बुला रहे हैं। Just as we read, He is a faithful God. जैसे हमने पढ़ा वो सच्चा विश्वास योग्य परमेश्वर है। We may be without faith. हम विश्वास के बगैर रहेंगे। We may be faithless. हम अविश्वासी बन के जीते We may होंगे। be unfaithful to God. हम अविश्वास योग्य ठहरे होंगे। But लेकिन because He is faithful, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, He comes down and calls you. वो आते हैं और आपको बुलाते हैं। And how important is that calling for us? और वो कितना महत्वपूर्ण बात है। Now you need to know why you are called. और अभी आपको जानना जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने आपको बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। Are you happy that yes, God has called you? क्या आप खुश हैं कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया? Let's open Romans chapter 8. रोमन की किताब खोलेंगे। Romans chapter 8 verse 28. रोमन की किताब 8वां अध्याय 28 वचन. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर की प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Who are called according to His purpose. परमेश्वर की योजना इच्छा के लिए वो बुलाए गए हैं। You are not called according to your purpose. आपकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप बुलाए गए नहीं। You are not called to fulfill your plans. आपकी जो योजना है उसको पूरा करने के लिए नहीं। Everybody has a future plan. सबके पास एक फ्यूचर में, भविष्य में कुछ योजना है। We have to do this, we have to be like this, we have to live like this. मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ, ऐसे होने वाला है, हम ऐसे जिएंगे। But the word says that He has called us according to His purpose. लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि उनके इच्छा के अनुसार उन्होंने हमें बुलाया है। It's not wrong to plan. गलत नहीं है कि हम एक योजना बनाएं। It's not wrong to have a future design. हमारी भविष्य को सोचना गलत नहीं है। The word says, as high as the heaven is above the earth, so are my thoughts and plans higher than yours. वचन कहता है कि जितना आप आसमान की ऊंचाई को देखते हैं उतना ही मेरा प्रेम और आशा जो है तुम्हारे लिए है। My plans are higher than your plans. मेरा योजनाएं तुम्हारी योजनाएं से बढ़कर है। So the more we plan, it doesn't matter. It's not going to be less than, it's not going to be more than what God has planned. और हमारी जो योजना है वो बड़ा नहीं होने वाला है जो परमेश्वर की योजना से। His plan is always greater than whatever we have उनका planned. योजना जो है हर बार बड़े ही होगा। Hallelujah. Hallelujah. So when we are called according to His purpose, we need to live a life that fulfills His purpose. और इसलिए अगर हम उनकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए तो हमें जीना भी पड़ेगा उनकी इच्छा के अनुसार। If you read that verse in the beginning, it says, and we know that all things work together for good to those who love God. और यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। It is for those who love God. वो उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। And those who love God, if you love God, everything that God is going to do in your life is for your good. अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो आपकी भलाई के लिए करेगा। Hallelujah. Hallelujah. The next we'll open to 1 Peter. पहला पत्रस की किताब 1 Peter chapter 2. दूसरा अध्याय verse 21. 21 वचन। For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह अभी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। Hallelujah. Hallelujah. We are called according to this verse. If you see, अगर हम ये वचन को पढ़ते हैं, we are called because Christ suffered for us. हम बुलाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दुख उठाया, and because we should follow His steps. ताकि हम उनकी आदर्श दे पाए कि उनके पद चिन्हों पर चले।
we should follow his steps. उनके पद चिन्हों पर चले। You are not just called to be like you just call and you be sitting at home. उन्होंने आपको ऐसे ही बुलाया नहीं है कि हम घर पे बैठ के रहिए। If you are called, you become Christians. That's not the way. उन्होंने आपको बुलाया इसलिए आप मसीह हैं, ऐसा नहीं है। He has called us to follow his steps. और उन्होंने उनकी पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें बुलाया है। The first we read that we are called according to his purpose. और हमने पहले पढ़ा कि उनकी इच्छा अनुसार आपने परमेश्वर ने हमें बुलाया। The second, he's called us to follow his steps. और दूसरी बात उन्होंने हमें बुलाया था कि हम उनके पद चिन्हों पर चले। So it's not about you live in the world, but you live in the ways of the world. इसलिए ऐसा नहीं है कि तुम दुनिया में जियोगे और दुनियादारी बन जाओगे। You live in the world, but you live in the ways of God. आप दुनिया में जियोगे लेकिन परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलोगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's turn our Bibles to 2 Timothy दूसरा तिमोथी की किताब chapter 1. 2 Timothy chapter 1. दूसरा तिमोथी की किताब पहला अध्याय Verse 9. 9 वचन। Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलावट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। He has called us with a holy calling. परमेश्वर ने हमें पवित्र बुलावट के साथ बुलाया। He's not just called you, परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं बुलाया, but he's called you with a holy calling. एक पवित्र बुलावट के साथ। Holy calling comes along with self-submission. और ये पवित्र बुलावट तब आता है जब आप समर्पित रहते हैं। When you commit yourself to the holy ways of God, जब आप परमेश्वर की पवित्रता में खुद को समर्पित करते हैं, according to his purpose उनकी इच्छा के अनुसार and according to his grace, और उनके अनुग्रह के अनुसार, that is because you love God. क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Living a life, a Christian life, is not a joke. और मसीह जीवन जीना ऐसा ही मजाक नहीं है। It is not a religion. वो ऐसे ही एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है, एक धर्म नहीं है, but it is a way that God expects us to live. लेकिन परमेश्वर हमसे एक योजना के अनुसार बुलाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. We need to commit ourselves to live a holy life. और इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन जीने। Let's open 1 Peter chapter 2 verse 9. पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। Hallelujah. हालेलुया। When you read this word, first we were seeing who God is, पहले हमने देखा कि परमेश्वर कौन है, why he calls you. क्यों हमें बुलाया, That is what we are studying now. वही हम पढ़ रहे हैं। First we seen that he calls us because of his purpose. पहले हमने देखा कि उनकी इच्छा के अनुसार उन्होंने बुलाया, He calls us to follow his steps and live a holy life. उनके पद चिन्ह पर चलने के लिए और पवित्र जीने के लिए बुलाया। He calls us because we are his chosen generation. और अभी हमने देखा कि उन्होंने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उनके पवित्र लोग ठहरे, Hallelujah. That we may proclaim the praises of him. ताकि हम उनकी गुण प्रकट करें। He has called us out of darkness into his everlasting light. परमेश्वर ने हमें अंधकार से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है। We need to realize who we are in the presence of God. हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। God has not just called us simply, परमेश्वर ने ऐसे हमें नहीं बुलाया, but we have a role to play, that we are a chosen generation, इसलिए हमें भी एक कार्य करना है। a royal priesthood. इसलिए हमें एक याजकों का समाज, पवित्र लोग, Yes. नीच प्रजा होना है। We are a holy nation. Amen. हम एक पवित्र जन So बने। there is a purpose
and a role that you and I have to और play. इसमें एक योजना है और एक रोल है, मकसद है जैसे हमें जीना चाहिए। Yes, it is not only one day but every day. सिर्फ एक ही दिन नहीं, लेकिन हर दिन हमें वो जीना है। If you take for instance, if you consider the Prime Minister, अगर अभी हम देखेंगे एक उदाहरण के रूप में, अगर हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, he's never a Prime Minister only from Monday to Friday or Saturday and Sunday. He is just a normal citizen. ऐसे ही नहीं है कि पूरे हफ्ते में पहले 4 दिन 5 दिन ही वो प्राइम मिनिस्टर है और दूसरे 2 दिन वो नहीं है। When he is in holidays, he is not a Prime Minister. He is a normal man. और अगर हॉलिडे के दिन भी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, ऐसा नहीं है। If he is a Prime Minister all the time, he is a Prime Minister till he is on that seat. अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, जब तक वो कुर्सी पे है तब तक, जब तक है वो कुर्सी पे तब तक वो प्राइम मिनिस्टर है। The same way, वैसे till ही, we are alive, जब तक हम जीवित हैं, till we know the realization, the calling of God, जब तक हम जाने की परमेश्वर की बुलावट क्या है, we are His chosen generation and a royal priesthood. तब तक हम उनके चुने हुए वंश हैं और राजपदारी याजक के समान। Hallelujah! I want to give Hallelujah! the Lord a mighty clap of जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। Let's turn our Bibles to 1 Corinthians पहला कुरिन्थियों का किताब, chapter 1, verse 9. पहला अध्याय 9 वचन। So when you realize that you are a chosen generation, a royal priesthood, जब आप जानेंगे कि आप कौन हैं, it is for a reason. वो एक मकसद के लिए ही है, It is so that we will have fellowship with Jesus. ताकि हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ते बांधे, उसके लिए है। Let's read it. Verse 9. 9 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है और जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह को संगति में बुलाया है। God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son Jesus Christ, our Lord. और परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। He's called us to have fellowship with Jesus Christ. और यीशु मसीह के साथ एक संगति बांधने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। Not just become a holy nation and just that's it, केवल एक पवित्र जन बन के जीने के लिए नहीं, but to have a continual fellowship with Jesus. और परमेश्वर के साथ एक संगति रखने के लिए बुलाया। Hallelujah. हालेलुया। And this will help us to inherit a blessing. और ये हमें एक आशीष लाएगा। Let's open our Bible to 1 Peter पहला पत्रस की किताब, chapter 3, verse 9. तीसरा अध्याय 9 वचन। Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। We are called to inherit a blessing. और हम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। So as you are listening to the word, I know that you are going to understand the various purposes that God has called us for. और जैसे आप वचन सुन रहे हैं, अभी मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने क्यों हर एक को अलग तरीके से बुलाया गया। We are called to have a different calling, हमें एक अलग बुलावट के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, to inherit a blessing. एक वारिस होने के लिए, आशीष के वारिस होने If के someone लिए। is a king and his heir will inherit the kingdom, और अगर कोई राजा है तो उसके बेटे जो है वही वारिस बनेगा, and he takes everything that is his father's. और जो कुछ उसके पिता का है वो उसको लेगा। And you can imagine to inherit a blessing from God. और परमेश्वर के हाथ के वारिस होने के लिए तो समझ जाइए कैसा रहेगा। What kind of blessing is that? वो कैसा आशीष रहने वाला है When you inherit that blessing. जब आप वो आशीष को लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। We have a calling because we have one hope. हमारे पास एक बुलावट है क्योंकि हमारे पास एक आशा है। Ephesians chapter 4 verse 4 says, इफिसियों की किताब 4:4 में लिखा है, there is one body and one spirit, just as you were called in one hope of your calling. एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। We have a hope, हमारे पास एक आशा है, that one hope वो एक आशा
leads us closer to God. वो हमें परमेश्वर के करीब लाता है। We have a hope that God will take us with Him. हमें आशा है कि परमेश्वर हमें उनके संग लेंगे। We have a hope that everything will be alright. सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे पास एक आशा है। You were called in one hope of your calling. एक आशा में आपकी बुलावट के अनुसार हम हैं। The calling is very heavy. वो कॉलिंग जो है, वो बुलावट जो है, वो बहुत ही भारी है। Many people tell, please pray that I may know my calling. बहुत लोग ऐसे कहते हैं हमें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए हमारी बुलावट को जानने के लिए, Because that calling is very heavy. क्योंकि वो बुलावट जो है वो बहुत ही भारी है। You want to do something according and based on what you were called for. आपको जीना है वैसा जैसे परमेश्वर ने आपको बुलाया है, And we are called to share in His glory. और हमें परमेश्वर ने बुलाया ताकि हम उनकी महिमा के संग रहे। 2 Thessalonians दूसरा तेसलोनियन की किताब chapter 2 दूसरा अध्याय verse 14. 14 वचन। To which He called you by our gospel for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो, So that you will obtain the glory of God. ताकि तुम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करे। Yes, that is the hope that we have. यही वो आशा है। Hallelujah. हालेलुया। That we will be able to share in the glory of God. कि हम परमेश्वर की महिमा के संग रहे। Hallelujah. हालेलुया। Yes, let's go further. Philippians chapter 3 verse 14. फिलिपियों की किताब को देखेंगे 4 अध्याय 14 वचन। I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. फिलिपियों की किताब 3 अध्याय 14 वचन। निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। Hallelujah. हालेलुया। We are called towards an upward calling. परमेश्वर ने हमें बुलाया है निशानी की ओर और ऊपर बुलावट के लिए। Hallelujah. So our eyes should be towards the goal. और इसलिए हमें निशानी की ओर अपनी आंख रखना है। Here you see that how Paul says he presses towards the goal for the prize of the upward call. और यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो निशानी की ओर दौड़ा चलता है उनकी बुलावट, ऊपरी बुलावट के लिए। When you see I press towards, that means he knows it's difficult to achieve that goal, but he's ready to give everything so that he can achieve that goal. क्योंकि वो पौलुस तैयार है कि कुछ भी करने के लिए ताकि वो निशाने की ओर चले और उस बुलावट को प्राप्त करे। Hallelujah. Hallelujah. We are called here to win that prize. और हमें वो इनाम जीतने के लिए बुलाए गए हैं। So as we were studying all this while, और जैसे हमने ये सब पढ़ा, what the call of God is, परमेश्वर की बुलावट क्या है, who is the God who's calling us, कौन हमें बुला रहे हैं and why he's calling और us. क्यों हमें बुलाया है। The calling was to edify ourselves. वो हमारी जीवन को बढ़ाने के लिए है। The call is to edify us in the world, और ये दुनिया में एक ऊंची स्थिर में लाने के लिए वो बुलावट है। and a call to lift us up to a heavenly calling. और हमें उठाने के लिए ताकि एक स्वर्गीय बुलावट को पूरा करे। So calling is not something that you live, you die, and that's over. और बुलावट ऐसा नहीं कि हम जीते हैं फिर मर जाते हैं, But this calling of God, ये बुलावट जो परमेश्वर से है। you need to realize your value in the presence of God. आपको परमेश्वर की जो महत्वपूर्ण बात है वो जाना बहुत To जरूरी है live a life of holiness और एक पवित्र जीवन जीने के लिए and to prepare for the upward call. एक ऊपरी जो स्थिर है वो जाने के लिए। The upward call is something that will be beyond our understanding.
वो ऊपर बुलावट जो है वो हमारी सोच से बढ़कर है। Our plans, our thoughts, everything is nothing compared to the upward हमारी call of सोच God. समझ वो सब कुछ नहीं है, योजनाएं कुछ नहीं है उनकी ऊपर बुलावट से। How many of you want to be called by God? कितने सारे लोग आज परमेश्वर से बुलाए गए जन बनना चाहते हैं। How many of you want to realize and value that beautiful call of God? कितने सारे लोग आज जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की सुंदर बुलावट को। Hallelujah. हालेलुया। Let's all close our eyes and thank the Lord for calling us into His grace. आज हम अपनी आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आपने हमें अनुग्रह से बुलाया है। He's called us into His everlasting love. उन्होंने हमें अपनी अनंतकाल के प्रेम में बुलाया है। Though we don't realize our worth, but He knows who we are. अगर हम अपनी कीमत को नहीं जानते तो भी परमेश्वर हमें जानता है। He's called us as His chosen generation. उन्होंने हमें अपने चुने हुए जन बनाया है। He's called us as a holy priesthood और परमेश्वर ने हमें पवित्र याजक बोल के बुलाया है because He trusts in us. क्योंकि वो हम पर विश्वास करते हैं And we have to be worthy of that call. और परमेश्वर हम पर भरोसा करते हैं और हमें उनकी योजना के अनुसार जीवित रहना है। Let us ask the Lord, Lord, help us to be worthy of the call that you have. परमेश्वर जो बुलावट आपने हमारे लिए रखा है उसके लिए मुझे आप योग्य बनाइए। Hallelujah. We thank you, Hallelujah. Jesus. We thank you, Lord, at this moment as you have given us, Father. परमेश्वर धन्यवाद कहते हैं इस समय के लिए। We pray for all those who have joined along with us. आज जो कोई इसमें शामिल है उनके लिए प्रार्थना करते There हैं। are many who are in hiding. बहुत सारे लोग छिपे हुए हैं। There are many who don't know how to come out and face. बहुत सारे लोग हैं जो आगे आके खड़े नहीं रह पा रहे हैं। Lord, but you are a God who calls us out of darkness. आप हमें अंधकार से बाहर बुलाने वाले परमेश्वर हैं। You have called us from our lowly lives. आप हमें नीचे स्थिर से ऊपर उठाने वाले परमेश्वर हैं। You are a God who called us for an everlasting salvation. और अनंतकाल के उद्धार के लिए आपने हमें बुलाया है। You have called us according to your everlasting love. और आपके अनंतकाल के प्रेम से आपने हमें बुलाया है। Lord, we pray for every person right now. और आज भी जो कोई यहाँ है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। We pray, Father, in the name of Jesus, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Lord, that you will bless them. हर एक को आशीष कीजिए। You will bless them. आशीष कीजिए। Let them know their calling. उनकी बुलावट को जाने Let प्रभु। them live a life that is worthy of your calling. आपकी बुलावट की योग्य हो जीने के लिए मदद कीजिए। Don't let anyone take it lightly, वो ऐसे ही व्यर्थ रूप में न ले प्रभु, but let them be a blessing in this world. लेकिन वो एक आशीष बने इस दुनिया में। Just as what you called Paul and all the apostles. जैसे अपने पौलुस और अपने चेलों को बुलाया, But the same way we pray, Father, that you will call your people and let us be faithful according to it. वैसे आप अपने लोगों को बुलाएंगे और हम विश्वास योग्य ठहरे प्रभु। We thank you if you're going to do so. धन्यवाद आप ऐसे करेंगे। We pray for the coming week ahead. ये पूरे हफ्ते के लिए हम प्रार्थना We करते pray हैं। that there will be a time of blessings for each one. ये हफ्ता हमारे लिए आशीष बने Help us to grow more and more closer to you. और भी बढ़ने के लिए आपके करीब आने के लिए मदद All those कीजिए। struggling with sicknesses, diseases, we pray that you will heal them in the name of जो Jesus. कोई आज बीमारियों से गुजर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई हो जाए। And we pray, Father, that your name will be glorified. हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम की महिमा हो। You will bless each one according to your will. आपकी योजना के अनुसार आप हर एक को आशीष करेंगे। We thank you if you're going to do so. हम धन्यवाद करते हैं आप ऐसे करेंगे। We believe that all that we've asked we have received. विश्वास करते हैं प्रभु कि जो कुछ भी हमने मांगा हमने पाया। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. 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 Hallelujah। Let's give the Lord a mighty clap offering for how much He loves us. आज जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उनके प्रेम को जानने। Hallelujah. Hallelujah. We thank you so much for joining along. आज आप हमारे संग हैं उसके लिए हम धन्यवाद कहना We चाहते believe हैं। that as a church we will grow to glorify God. हम विश्वास करते हैं कि एक कलीसिया होकर एक परिवार होकर हम उठेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। We have various other meetings in the church. और बहुत सारे मीटिंग्स हैं हमारी सभा में। We have Bible study, youth meetings. We have a men's meeting and ladies meeting. हमारी जो सभा में बहुत सारी मीटिंग्स हैं, लेडीज मीटिंग, मेंस मीटिंग, बाइबल स्टडी चलता है। So please, if you are interested, you can send a message. और यूथ मीटिंग्स भी चलता है, इसलिए अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप कृपया मैसेज कीजिए And we'll send you the necessary links. और हम आपको लिंक भेजेंगे। And as a church,
we pray and we believe that each of us will glorify God. और मैं विश्वास करती हूँ कि एक सभा होकर हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। At this time that our pastor has gone out, और जैसे ये समय में हमारे पासवान जो है वो बाहर गए हैं, so that's the reason that he couldn't attend the service. और इसलिए आज वो आज हमारे बीच में इस सभा में नहीं हो पाए, But he is attending as he's connected with us online and he's praying for each one of us. और फिर भी वो आज इस लाइव स्ट्रीम में शामिल है और आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. We thank you for joining. We pray that you will be blessed and please share this video with your families and friends so that they also will be मैं blessed. विश्वास करती हूँ कि आप लोग सब आशीषित हैं और आप लोग सब इसको देखकर आपके जीवन में अद्भुत कार्य परमेश्वर करने वाले हैं। और ये लिंक को आप हर एक के साथ शेयर कीजिए, बांटिए अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ। So after this service, we'll be having our communion. और ये सर्विस के बाद हम कम्युनियन भी रखेंगे, Yeah, so you can join along. और इसलिए उस सभा में आप हमारे संग शामिल हो जाइए। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।